ضمنی انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پی پی 164 لاہور 20 سے راشد منہاس جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں جیت گئے ہیں۔ 31,499 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ مد مقابل امیدوار سنی اتحاد کونسل کے محمد یوسف جو کہ 25,781 ووٹ حاصل کر کے ہار گئے ہیں۔ یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں پی پی 164 لاہور کے، جہاں سے راشد منہاس جیت گئے ہیں۔ 31,499 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ مد مقابل امیدوار محمد یوسف 25,781 ووٹ حاصل کر کے ہار گئے ہیں۔ پی پی 164 لاہور کے یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں تمام 99 پولنگ سٹیشن کے، جن کے مطابق راشد منہاس جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں جیت گئے ہیں۔ 31,499 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل امیدوار ہے محمد یوسف جو کہ ہار گئے ہیں۔ ضمنی انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ N196 کمبر شہداد کوٹ کے نتائج ہیں، جہاں سے خورشید احمد جنیدو جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں 88,850 ووٹ حاصل کر کے جیت گئے ہیں۔ محمد علی بروہی جو کہ TLP کے کینڈیڈیٹ ہیں 2,696 ووٹ حاصل کرنے کے بعد ہار گئے ہیں۔ N196 کمبر شہداد کوٹ کے یہ نتائج ہیں، جہاں سے خورشید احمد جنیدو جیت گئے ہیں 88,850 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ مد مقابل امیدوار محمد علی بروہی جو کہ TLP کے کینڈیڈیٹ ہیں 2,696 ووٹ حاصل کرنے کے بعد یہ ہار گئے ہیں۔ N196 کمبر شہداد کوٹ تمام تر 303 پولنگ سٹیشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج خورشید احمد جنیدو ہوئے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے نثار احمد اس وقت 1,078 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں۔ پی پی 22 چکوال تلاگنگ کا یہ حلقہ ہے جس کے نتائج آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اگلے حلقہ قومی اسمبلی NA196 کمبر شہداد کوٹ 1 کا یہ حلقہ ہے، جہاں پر محمد علی بروہی TLP کے امیدوار جنہوں نے اب تک 3,569 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور پہلے نمبر پر ہے ان کے اپوزٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے خورشید احمد جنیدو جنہوں نے 568 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور اب تک دوسرے نمبر پر ہے۔ 303 پولنگ سٹیشنز میں سے 10 کے نتائج ابھی تک موصول ہوئے ہیں، اور یہ کمبر شہداد کوٹ 1 کا یہ حلقہ NA196 جس کے نتائج آپ اس وقت اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل ضمنی انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج پی پی 32 گجرات 6 سے، جہاں سے موسیٰ الہی جو کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے امیدوار ہیں وہ آگے ہیں 3,131 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل سنی اتحاد کونسل کے چودھری پرویز الہی 953 ووٹوں کے ساتھ پیچھے ہیں۔ پی پی 32 گجرات 6 کا یہ حلقہ ہے، جہاں سے موسیٰ الہی 3,131 ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں۔ 168 میں سے 6 پولنگ سٹیشن کے یہ نتائج ہیں، جن کے مطابق موسیٰ الہی آگے ہیں اور چودھری پرویز الہی پیچھے ہے۔ چودھری پرویز الہی نے 953 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ موسیٰ الہی 3,131 ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے 953 ووٹ یہاں سے حاصل کیے ہیں۔ 168 میں سے 6 پولنگ سٹیشن کے یہ نتائج ہیں۔ موسیٰ الہی 3,131 ووٹوں کے ساتھ پی پی 32 گجرات سے آگے ہیں، جبکہ چودھری پرویز الہی جو کہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہیں وہ پیچھے ہیں۔ اور یہ نتائج ہیں پی پی 54 ناروال 1 سے، جہاں سے احمد اقبال چودھری جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں 2,852 ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں، جبکہ سنی اتحاد کونسل کے اویس قاسم 2,074 ووٹوں کے ساتھ پیچھے ہیں۔ 155 میں سے 6 پولنگ سٹیشن کے یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج پی پی 54 نارووال سے، جہاں سے احمد اقبال چودھری اس وقت آگے ہیں 2,852 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ احمد اقبال چودھری یہاں سے آگے ہیں، جبکہ اویس قاسم سنی اتحاد کونسل کے رہنما وہ پیچھے ہیں۔ 2,074 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں، اور یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں پی پی 54 کے۔ 155 میں سے 6 پولنگ سٹیشن کے نتائج کے مطابق احمد اقبال چودھری پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ 2,852 ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں، جبکہ سنی اتحاد کونسل کے اویس قاسم وہ اس وقت 2,074 ووٹوں کے ساتھ پیچھے ہے۔ نارووال پی پی 54 کا یہ حلقہ ہے، جہاں سے آپ کو بتایا، اب آپ کو بتائیں کہ پی پی 22 لسبیلا سے محمد زرین خان مقسی جو ہیں وہ لیڈ کیے ہوئے ہیں 4,489 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل پاکستان پیپلز پارٹی کے محمد حسن ہیں جنہوں نے 362 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ 129 میں سے 11 پولنگ سٹیشن کے یہ نتائج ہیں، جہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ پی پی 22 لسبیلا سے آگے ہیں 4,479 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں، جبکہ محمد حسن جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں 362 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ 129 میں سے 11 پولنگ سٹیشن کے یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں۔
जी हाँ, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है और उसी तरह अपने नाज़रीन को लम्हा बलम्हा आगाह भी किए हुए हैं। लसबेला के नताइज आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। PB-22 का ये हल्का है जहाँ पर काफ़ी लीड है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की मोहम्मद ज़रीन खान मक्सी, जिन्होंने 4479 वोट हासिल किए हैं और उनके मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट मोहम्मद हसन है, जिन्होंने 362 वोट हासिल किए। अगला हल्का NA44 डेरा इस्माइल खान एक का ये हल्का है जहाँ पर फैसल अमीन खान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार, जिन्होंने 10,468 वोट हासिल कर लिए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल रशीद खान कुंडी, जिन्होंने 1,246 वोट अब तक हासिल किए हैं और 95 पोलिंग स्टेशन के नताइज अब तक मौसूल हो चुके हैं 358 में से, जिनके मुताबिक 10,468 वोट अब तक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार फैसल अमीन खान ने हासिल किए हैं। NA44 का ये हल्का है डेरा इस्माइल खान एक का, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं अब्दुल रशीद खान, जिन्होंने 1,246 वोट हासिल किए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं और अब तक NA44 में से सिर्फ 95 पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल हो चुके हैं 358 में से और यहाँ पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फैसल अमीन खान इस वक्त लीड पर हैं। उन्होंने 10,468 वोट हासिल किए हैं और ये एक लीड अच्छी है और जो दूसरे उम्मीदवार हैं उन्होंने 1,246 वोट हासिल किए हैं। डेरा इस्माइल खान का ये हल्का है PP-54 नारोवाल एक की अगर बात की जाए तो वहां पर इस वक्त अवैस कासिम, जो कि अब तक आगे थे, अब वो पीछे हो चुके हैं, जिन्होंने 2,074 वोट हासिल किए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार यहां पर आगे चले गए हैं अहमद इकबाल चौधरी, जिन्होंने 2,852 वोट हासिल किए हैं। नारोवाल का ये हल्का है PP-54 नारोवाल एक का 155 में से 6 पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल हुए हैं और अवैस कासिम, जो कि अब से कुछ देर पहले इस हल्के में आगे थे, जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अहमद इकबाल चौधरी इस हल्के में आगे हैं। 2852 वोट इस वक्त उन्होंने हासिल किए हैं। NA8 बाजोड़ का हल्का, जहां पर मुबारक ज़ेब आज़ाद उम्मीदवार 2,232 वोट लेकर आगे हैं और उनके पीछे उम्मीदवार इस वक्त हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के PP-22 चकवाल तलागंग का ये हल्का है, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 1,732 वोट लेकर आगे हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार जिन्होंने 1,365 वोट हासिल किए हैं। ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज PP-22 चकवाल तलागंग से मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट फलक शेर अवान आगे हैं, जिन्होंने 1,732 वोट हासिल किए हैं। मद्दे मुकाबल उम्मीदवार निसार अहमद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, जिन्होंने इस वक्त 1,365 वोट हासिल किए हैं। PP-22 चकवाल तलागंग के ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज 200 में से 6 पोलिंग स्टेशन के ये नताइज थे, जिसके बारे में आपको अपडेट किया। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मूसा इलाही 3,131 वोटों के साथ आगे हैं। PP-32 गुजरात का ये हल्का है, जहां से चौधरी परवेज इलाही पीछे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल उम्मीदवार मूसा इलाही 3,131 वोटों के साथ आगे हैं। PP-32 गुजरात 168 में से 6 के ये पोलिंग स्टेशन के नताइज थे, जिसके मुताबिक चौधरी परवेज इलाही इस वक्त पीछे हैं और एक्सप्रेस न्यूज़ हमेशा की तरह अपने नाज़रीन को सबसे पहले नताइज से आगाह कर रहा है। NA8 का नतीजा हिफ्ज़ा ट्रेन लेके आई है बाजोड़ से, जहां से आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त आगे हैं। मुबारक ज़ेब इनका नाम है, 3,262 वोट इन्होंने हासिल किए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा जो इनके मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट थे पीछे हैं। गुलजफर खान, जिन्होंने 1,693 वोट हासिल किए हैं। ये हिफ्ज़ा गैर हतमी गैर सरकारी नताइज थे। एक और ट्रेन अपने नाजरीन के लिए यहाँ पर ट्रेन आई है और ये देखना है कि किस हल्के से क्या नतीजा लेके आई है। NA44 का ये हल्का है डेरा इस्माइल खान एक का, जहां से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार आगे हैं फैसल अमीन खान, जिन्होंने 10,468 वोट हासिल किए हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल रशीद खान कुंडी, जो कि 1,246 वोटों के साथ पीछे हैं। बिल्कुल NA का एक और हल्का डिस्कस कर लेते हैं और जो कि ट्रेन पहुंच चुकी है। NA196 का ये हल्का है कंबर शहदाद कोट एक का, जहां पर TLP के उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे हैं, जो कि मोहम्मद अली बरोही हैं। उन्होंने 3,569 वोट अब तक हासिल किए हैं और यहां पर तीर जो है वो अभी तक निशाने पर नहीं लगा है। खुर्शीद अहमद जुनेजो, जिन्होंने 568 वोट अब तक हासिल किए हैं। कंबर शहदाद कोट एक का ये हल्का है। NA196
जिसके नताइज आपने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा किए हैं। और यहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं और टीएलपी के मोहम्मद अली बरोही पहले नंबर पर थे। अगर आप देखें तो उमैर कुछ ये गुब्बारे भी आ गए हैं जो कि हमें बताएंगे। अब बलून आए हैं और बलून नतीजा लेके आए हैं पीपी 93 का, जहां से आजाद उम्मीदवार पीछे हैं जबकि उनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो आगे हैं। उन्होंने वोट हासिल किए हैं 136 और जो उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार है आजाद मोहम्मद अफजल खान, उन्होंने 68 वोट हासिल किए हैं। ट्रेन के बाद अब बलून से भी अपने नाजरीन को लम्हा बलम्हा जैसे जैसे जिस पोलिंग स्टेशन के नताइज हमें मौसूल हो रहे हैं अपने नाजरीन तक सबसे पहले पहुंचाए जा रहे हैं। हिफ्जा, एक और बलून आया है, आप नाजरीन को बताएं कि ये बलून बिल्कुल उमैर, ये बैलून्स बता रहे हैं कौन सा उम्मीदवार ज्यादा परवान भरे हुए हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस वक्त अगर मोहम्मद शुएब सिद्दीकी आगे हैं, आईपीपी के उम्मीदवार हैं जिन्होंने 435 वोट हासिल किए हैं और उनके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, उन्होंने 382 वोट हासिल किए हैं। पीपी 149 लाहौर 5 का ये हल्का है और यहाँ पर मोहम्मद शुएब सिद्दीकी आईपीपी के उम्मीदवार 435 वोटों के साथ पहले नंबर पर हैं और ज़िशान रशीद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार 382 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। पीपी 149 लाहौर 5 का ये हल्का है और यहाँ पर 218 में से अब तक 3 पोलिंग स्टेशंस के नताइज मौसूल हुए हैं और आईपीपी के उम्मीदवार मोहम्मद शुएब सिद्दीकी 435 वोटों के साथ आगे हैं। मार्जिन ज़्यादा नहीं है और अब तक सिर्फ 3 के पोलिंग स्टेशंस के नताइज अब तक मौसूल हुए हैं। जी हाँ, पीपी 149 लाहौर 5 से आपको अपडेट कर रहे हैं। 3 हलकों के नताइज हैं और मोहम्मद शुएब सिद्दीकी 435 वोट लेकर आगे हैं जबकि ज़िशान रशीद पीछे हैं 382 वोट लेकर और 218 में से 3